Hello Twilights, welcome or welcome back to Twilight Corner. So in today's video we are going to be reading and understanding and properly conceptual way say we'll be reading and understanding and completing this whole chapter for chapter number 1, that is chemical reactions and equations. And you will be having a lot of fun in this chapter that I'm going to be teaching you. So yeah, let's start. But before we start, make sure to like this video, subscribe, and also share this video with your friends, because this is the best explanation that you can get. As a word to word I will read it and explain it to you and give more context and more understandings and visuals that you will be able to understand this chapter very well. Okay, so let's start. And please do help me reach our 200 subscribers till the end of the month. Okay, so yeah, let's start. And please do share this with your friends. Okay, now let us start with a quote. As I told, we'll be reading word to word. So basically, let us see a quote from Martin H. Fisher. Facts are not science, as the dictionary is not literature. So basically, facts, whatever the facts or the universal facts which are there, it is not everything is science over here. They are telling a dictionary is not literature. Like obviously there will be so many words in a dictionary, but is that a story? No, right? So that is what is the good quote by Martin H. Fisher. Obviously this won't come in your report exam, but this was actually this is nice quote to start off this chapter. So let's start. And Shri Ganesh करते हैं इस chapter का. That's what I learned from Shobit भैया. Okay. Chapter number 1, chemical reactions and equations. So let's see. इससे पहले चैप्टर का नाम में क्या छुपा हुआ है भाई? अब देखो, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल का मतलब तो जानते हो, नहीं जानते तो एसिड बेस होता है ना. जैसे तुम HCl की बात करते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. फिर रिएक्शंस, जब कोई दो चीजें बना बना के तुम जो वॉशरूम में खेलते रहते थे जब छोटे थे, कुछ कुछ चीजें मिला मिला के कुछ तो रिएक्शन करते रहते थे ना. तो वो था. एंड इन मैथ्स में जो तुम क्या कहते हो, इक्वेशंस पढ़ते रहते हो ना, कि A+B=C, ऐसे कुछ कुछ पढ़ते रहते हो ना तुम लोग. तो यही है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का मतलब अच्छे से चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत सारे रिएक्शंस हैं. But don't worry, by the end of this lecture, I am damn sure that you will be able to understand this chapter very well. If not be able to complete this chapter in one lecture, there will be a part 2, but in 2 parts, I will definitely complete this chapter. Okay, let's start. So, consider the following situations of daily life and think what happens when. Milk is left at room temperature during summers. An iron tawa pan nail is left exposed to a humid temperature. Grapes get fermented. Food is cooked and food gets digested in our body. We respire. अब देखो क्या है, consider the following situations. We have a few things that we have in our daily life, जो हमारे रोजगार की लाइफ है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं. एंड थिंक व्हाट हैपेंस, ये कुछ कुछ इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, दैट कैन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती है, तो थिंक अबाउट इट. So the first one is, milk is left at a room temperature during summers. Obviously when milk, जो तुम्हारे मिल्क होता है, मिल्क का पैकेट मिलता है ना, अगर तुमने उस रूम टेम्परेचर में रख दिया समर्स में, obviously it will spoil, it will go to it will become sour, right? That is because of the lactose sugars or the lactobacillus. There is an bacteria जो 9th में पढ़ा हुआ I think था तुम लोगों ने, क्या 8th में पढ़ा था, lactobacillus है ना. तो इस lactobacillus से क्या होता है कि जो कहते हैं, obviously ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, but I'm just telling you because I want you to have a clear understanding of every single thing. तो milk is left in at a room temperature, इससे क्या होता है, milk spoil हो जाता है, it becomes sour in taste. That is because of the lactobacillus bacteria and it converts the lactose sugar into lacto acid. Next, an iron tawa pan nail is left exposed in the humid temperature. तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, इफ आयरन तवा whatsoever it is there, something made up of iron or steel, something like that, right? Whenever it is left in a humid temperature, क्या हो जाता है, it becomes rusted. As you can see, it becomes like पूरा black थोड़ा वो हो जाता है ना, rust
rust हो जाता है, it looks very खराब and stuff, right? It looks very bad. So that becomes rusted. Why? It is because of the oxide that is formed or the impurities that are formed. If you're not understanding what I'm trying to say right now, we'll go ahead with the chapter and then you will be able to understand what I meant here, okay? But for now, just understand there will be a coating that would be created on top of it. Okay, now grapes get fermented, so when it gets fermented it obviously converts into alcohol, right? Alcohol पढ़ा था तो लास्ट ईयर, राइट? तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, वाइन जैसे होता है ना वैसे. Now food is getting cooked. Food is obviously a chemical process. वैसे तुम खाना बनाते हो तो कुछ कुछ चीज़ें डालते हो, उसका टेस्ट आता है, तो वही food is getting cooked. Then food gets digested into our body. That is because of the biochemicals जैसे होते हैं तुम्हारे बॉडी में, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो सबको पता होता है ना. तो बायोकेमिकल जो होते हैं तुम्हारे बॉडी में, उसकी वजह से तुम्हारा डाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना. वी रेस्पायर, द breakdown of glucose takes place, right? So basically you could say that glucose plus O2 is leading to CO2 plus H2O raised to energy. ठीक है, डोंट माइंड. अभी रेस्पिरेशन, जिंदा रहने के लिए तुम ऑब्वियसली ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. चलो, इन द अबव सिचुएशंस, and the identity of initial substances has somewhat changed. तो अब तुम देख पा रहे हो कि the nature or the identity or there would be somewhat changes that would be there in all of these situations. जैसे milk sour हो गया, फूड जो था वो अब like थोड़ा कुक हो गया, है ना. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कुछ कुछ चेंजेस तो ऑब्वियसली हुए हैं. So we have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. अब तुम पूछोगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं पता. देखो, फिजिकल चेंज ना मैं तुम्हें जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ. फिजिकल चेंज क्या होता है? तो तुम्हारी जो, जैसे मान लो तुम पेपर को कट कर रहे हो, ठीक है, तो पेपर को तुम वापस ग्लू भी कर सकते हो, है ना, तो वो वापस अपनी सेम फॉर्म में आ जाएगा. तो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, मतलब तुम वो चीज़ें रिवर्स कर सकते हो. केमिकल चेंज में नया कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है. तो वी से दैट इफ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो आयरन जब रस्ट हो जाता है, यू कांट ब्रिंग इट बैक टू आयरन ना, दैट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल चेंज, राइट? सो यू मे हैव परहैप्स बीन वंडरिंग टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस. अब तुम सोचते होगे कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हुआ क्या, होता क्या है भाई, केमिकल रिएक्शन हुआ कब, ये सब सोचते होगे. Let us perform some activities to answer these questions. ठीक है, चलो एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी इजी एक्टिविटी बट अ वेरी हाई स्कोरिंग एक्टिविटी दैट यू कैन लर्न. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है. अब देखो, इजी तो है पढ़ने में, बट इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं, तो तुम अच्छे से सुनना कान खोल के, ठीक है. एक्टिविटी 1.1, caution, this activity needs the teacher's assistance. मतलब टीचर की असिस्टेंस हेल्प चाहिए. It would be better if the students wear suitable eye glasses. मतलब चश्मा वश्मे लगा के थोड़े तुम करो, ठीक है. तो clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeters long by rubbing it with sandpaper. देखो, तुम्हारा इधर एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है. मैग्नीशियम रिबन जो है, इसको तुम्हें क्लीन करना है विथ सैंड पेपर. यू आर गोइंग टू थोड़ा सा फाइल इट विथ सैंड पेपर. व्हाई विल यू फाइल इट विथ सैंड पेपर, सोचे कभी? Well, this is a question that appears in your board exams very frequently. Why do we sand the magnesium Mg, ऐसे लिख दे रही हूँ, magnesium ribbon with sand paper? क्यों करते हो ऐसा? This is because it is ना, because क्या होता है कि when it is out in the humid, right? humid में जब there it is found, तो basically क्या होता है कि MgO is formed. अब MgO क्या होता है? देखो, जैसे मान लो तुम्हारा कोई मैग्नीशियम रिबन है, तो ऑब्वियसली बाहर तो ऑक्सीजन वगैरह है ना एटमॉस्फेयर में, तो जो ऑक्सीजन है ये मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. अब पूछो कंपाउंड फॉर्मेशन एक बार बता दो जी. बता देती हूँ भाई, मैं कहाँ मना करी हूँ. मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है. देखो, सोचो सोचो, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती थी भाई?
चलो बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो। 2 होती थी उसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है, हाइड्रोजन की आई मीन ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है। अब इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा MgO, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ MgO एंड अदर इम्प्योरिटीज। टू रिमूव दैट इज व्हाई वी यूज सैंड पेपर, ठीक है। तो टू रिमूव MgO एंड अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है। इतना मैं बोल दे रही हूँ, तुम लिख लो उधर, कहीं मार्क कर लो। Now, hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash formed in a watch glass. अब तुम क्या करोगे? You are going to hold this with a pair of tongs. मतलब like this tongs होते हैं, मतलब kind of like a चिमटा you could say. ठीक है, तो hold it with a pair of tongs at magnesium ribbon and then you are going to take a burner ले सकते हो, candle ले सकते हो, ठीक है। With that help you are going to burn a magnesium ribbon. Okay, so with the spirit lamp or a burner you will collect the ash at the watch glass. अब ये तुम्हारा जो एक छोटा सा बाउल रखा है ना, इसको तुम watch glass कहते हो। एंड इसी watch glass में जब when you are going to burn the magnesium ribbon and so it will come down and there will be some white ashes or a white powder formed. Okay, so burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. Obviously तुम अपने आँखों के back रखना because it might affect your eyes as well. That is why it said to wear glasses, etc. So please do keep it away. So basically you will take a watch glass, you will take a burner, you will burn the magnesium ribbon, and in that watch glass there will be white powder form. Okay, so what do you observe? There will be a formation of white powder and there will be a white dazzling flame when the magnesium ribbon burns. अब ये जब magnesium ribbon तुम जब burn कर रहे हो burner के साथ, क्या होगा ना, तुम एक फ्लेम्स देखोगे, बहुत वाइट वाइट ना फ्लेम्स देखोगे, ऐसे ऐसे बहुत लकीरें। तो वो जो फ्लेम्स होते हैं ना, उसको कहते हैं वाइट डार्जलिंग फ्लेम्स, ठीक है। वाइट डार्जलिंग फ्लेम्स एंड दे यू वुड बी सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पाउडर। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन व्हाट कैन यू सी। एक तो होता है वाइट पाउडर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वगैरह, तो यू विल सी इन द नेक्स्ट पेज। देखो, अब ये हो गया तुम्हारा एक्टिविटी कैसे करना है, अब मैं बताती हूँ क्या है। So you must have observed that the magnesium ribbon burns with a white dazzling flame. Very important, mark कर लो अपने, मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। magnesium ribbon burns with what? It burns with a white dazzling flame and changes into a white powder and then उसके बाद it turns into a white powder. Okay, so this powder is known as magnesium oxide. This जो white powder है, that is your magnesium oxide. As I told you, it forms with water. I mean it forms with the बाहर वाला coating, रब कर दिया। अब जब burn होता है तो it's reacting to form MgO, that is magnesium oxide, and it is formed due to the reaction between the present oxygen in the air. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन होता है, इट इज द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम रिबन एंड द ऑक्सीजन इन द एयर, दैट इज हाउ यू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया? तो क्या था, एक वाइट पाउडर मिलता है, एक डार्जलिंग फ्लेम मिलता है, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस एक्टिविटी। एंड व्हाई डू यू सैंड द सैंड विद द सैंड पेपर? बिकॉज टू रिमूव दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टू रिमूव अदर impurities as well. I hope this is clear. Again, if you want me to, I will write एक बार तुम्हारा chemical equations के लिए I will write the balanced chemical equation because अब तुम मुझसे पहले पूछोगे कि balanced chemical equation क्या होता है। जब आएगा बाहर टॉपिक तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी नहीं बता रही। बस ये लिख लो, 2mg plus O2 gives 2mgO। ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा इसका एक्टिविटी का रिएक्शन, ठीक है। चलो next, activity 1.2, take lead nitrate solution in a test tube. lead nitrate का फॉर्मूला, हाँ सोचो सोचो सोचो। Pb होता है लेड का, याद है अगर तुम लोगों को? Pb होता है क्या लेड का फॉर्मूला? उसका क्या होता है? वैलेंसी 2 होता है भाई। नाइट्रेट का होता है N, है ना? N होता है या NO3 होता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई। NO3 होता है यार, भूल मत जाना, ठीक है। NO3 होता है। नाइट्रेट बोला है, नाइट्राइट नहीं बोला, ठीक है। नाइट्रेट बोला है। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, इसको करोगे तो PbNO3 PB
NO3 whole twice. दिस इज योर फॉर्मूला दैट वुड बी फॉर्म्ड. मैं तुम लोगों को कंपाउंड फॉर्मेशन इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज अगर तुम्हारे बेसिक्स ये वाले क्लियर नहीं है तो अभी तुम क्लियर कर लो भाई. मतलब पहले बेसिक्स पढ़ के आ जाना फिर ये देखना. बट अगर नहीं भी पढ़ के आ रहे हो तो कल चल जाएगा काम बिकॉज मैं तुम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन दिखा रही हूँ. बट इफ़ यू वांट अ बेसिक का देखना है तो आई विल ऑल्सो अपलोड अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो. अब देखो क्या है. टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. तुम्हें PbNO3 होल ट्वाइस का एक सोल्यूशन लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब. ऐड पोटेशियम आयोडाइड इनटू इट. पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है भाई? के होता है, आई होता है, ठीक है, KI होता है इसका, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 होती है और आयोडाइड की भी वैलेंसी 1 होती है. ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड इन अ सोल्यूशन. in this solution तुम के PbKNO3 होल ट्वाइस प्लस KI लोगे, मतलब पोटेशियम आयोडाइड जो है लेड नाइट्रेट में तुम ऐड करोगे. ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्वियसली कुछ तो होगा ही भाई. क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो, जब तुम PbNO3 प्लस KI ऐड करते हो है ना इक्वेशन में, तो व्हाट डज इट फॉर्म? क्या नोटिस करोगे? Obviously there would be a chemical reaction that has taken place, है ना. Obviously there will be a chemical reaction that has taken place. अब इसका तुम एक प्रोडक्ट सोचो क्या होगा. PbKNO3 plus KI forms हाँ, तो ऑब्वियसली इसमें एक केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है, चलो, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होगा. ऑब्वियसली देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसी में यही है केमिकल रिएक्शन. ठीक है, बस इतना समझ लो कि सुनो सुनो, लिखो लिखो. अभी जो लिखा है PbKNO3 होल ट्वाइस प्लस KI, इतना लिख लो. अब देखो, एक्टिविटी 1.3 के है. मैं तुम्हें इसका कंक्लूजन बताऊंगी, डोंट वरी. तो टेक जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब. जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक का क्या होता है सिंबल? जिंक का सिंबल होता है Zn. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid in the test tube. अब तुम्हें HCl ऐड करना है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही तो होता है फॉर्मूला. और एक होता है SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोला है ना. सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है. ठीक है, तुम्हें नहीं, वो तो सल्फेट होता है. माय बैड. सल्फ्यूरिक एसिड का तुम बताना एक बार. HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने बता दिया. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला बताओ. सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है तुम्हारा H2SO4. H2SO4 होता है तुम्हारा इसका. और HCl होता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. तो ये तुम्हारा होता है H2SO4. तुम एग्जाम में बेटर होगा कि तुम HCl लिख लो बिकॉज इट इज़ मच बेटर एंड ईजियर टू समझ में आता है, क्योंकि ये बचपन से तुम याद कर रहे हो, है ना. तो add a few, you will take a test tube. In that you will add zinc granules. छोटे छोटे जिंक के ग्रैन्यूल्स ऐड करोगे. डस्ट ऐड करोगे. फिर you will add some dilute hydrochloric acid on it in that test tube. ठीक है, now handle acid with care. obviously take care because it is very important, है ना. और dilute का मतलब होता है कि तुम इसमें पानी ऐड कर दो कि थोड़ा बहुत कम एसिडिक, I mean थोड़ा कम हार्मफुल हो. ठीक है. Now do you observe anything happening around the zinc granules? Zinc granules, मान लो ये तुम्हारा zinc granules है और dilute sulfuric acid ऐड किया है, तो तुम उसमें क्या देखोगे? तुम देखोगे छोटे छोटे जो है गैस जो है ना, वो एवॉल्व करे होगा. और उससे पहले तुम ना एक वो कॉर्क डाल देना, मतलब बंद कर देना उस कॉनिकल ट्यूब को. ठीक है, तो जब तुम देखोगे ना तो थोड़ा सा एक
kind of you could see some gas evolving. That gas is your hydrogen gas, ठीक है? So you would see hydrogen gas that is being evolved. So touch the conical flask of the test tube. Is there any change in temperature also? Obviously the temperature will turn hot. So it would be an exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड और हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड, राइट? ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो कि बस अब हीट बहुत वो वार्म हो रहा है and obviously there is hydrogen gas that is being evolved. So the following three activities, we can say that the following observations will help us determine a chemical reaction has been taken place. अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि what are the observations, or we could say how can we determine a chemical reaction has taken place? How can we determine a chemical reaction has taken place? So either you will see change in state, either it will change from ice to water, like that होता है ना. There would be change in color, कुछ color change हो जाएगा, जैसे green to grey, reddish brown, ऐसे कुछ हो गया. Then evolution of gas, जैसे इस एक्टिविटी में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो था वो इवॉल्व हुआ था, मतलब आया था, ठीक है, गैस बना था. एंड चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इधर तुम इस एक्टिविटी में भी देखोगे दैट हीट इज इवॉल्व और हीट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, है ना. तो अब इसे कह सकते हो. अब तुम बोलोगे कि बहन जी 2 पेज समझाने में आपको 20 मिनट लग गए. भाई तुम्हें समझ में तो ढंग से आया होगा. देखो क्या क्या है, चेंज इन स्टेट, गैस इज बीइंग इन्वॉल्व, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. ये 4 चेंजेस लिख दोगे, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूरे नंबर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है. समझ में आ गया? वापस बोलो मेरे साथ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर. As we have observed changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about these various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो तुम देख पा रहे हो कि there are various changes that are being there around us, right? And we can see that there is a large variety of chemical reactions that has been taking place in this, right? Obviously बहुत सारी chemical reactions वगैरह वगैरह हो रहे हैं. So we will study about these various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. समझ में आया? मतलब इन केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखेंगे वर्ड इक्वेशन वगैरह वगैरह में, तो वो सब बताएंगे, ठीक है. The formation of hydrochloric acid in dilute hydrogen gas in dilute sulfuric acid. हाँ जी बेटा. अब तुम पूछोगे बेटा कि बताओ कि जिंक प्लस HCl तो कर दिया, बट उसका फॉर्मेशन क्या है दीदी? आई मीन दीदी नहीं, तुम्हारे एज की हूँ भाई मैं. तो देखो क्या है, Zn, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn. फिर HCl कैसे लिखते हैं, HCl HCl. तुम ये याद कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा इजी रहेगा. तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा ZnCl2, ठीक है. इधर ZnCl2. और वैसे ZnCl2 कैसे, देखो क्योंकि Cl का फॉर्मूला क्या आता है, क्लोराइड का फॉर्मूला, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ बताओ. क्लोरीन का फॉर्मूला 1 होता है, ठीक है, वैलेंसी 1 होता है, माय बैड, वैलेंसी 1 होता है. और जिंक का होता है 2, आई थिंक होते हैं उसके, क्या कहते हैं, 1 मिनट चेक करके बताती हूँ. आई थिंक जिंक के 2 वैलेंसीज होते हैं या एक होता है, पता नहीं. नहीं, जिंक का एक ही होता है, जिंक का होता है वैलेंसी 2, ठीक है. तो इसलिए ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है. चलो नेक्स्ट. इतना समझ में आ गया भाई लोग? अब इतना समझ में आ गया तो अब क्या करोगे, एंड ना जब मैं साथ साथ बताते जा रही हूँ ना, तुम लोग ये सब लिखते जाओ, ठीक है, उसी नोटबुक में, कि क्या होगा बाद में पढ़ने में इजी रहेगा तुम लोगों के लिए. फिर है केमिकल इक्वेशंस.
Activity 1.1 can be described when a magnesium ribbon is burnt with oxygen and it gets converted into magnesium oxide. This description of chemical reaction is in a sentence from it is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write a word equation. The word equation would be magnesium oxide, magnesium plus oxygen leads to magnesium oxide, reactants and products, and this is your direction. क्या बोला हिंदी में बताओ. देखो क्या है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है व्हेन इट इज बर्न्ट विद अ बर्नर, राइट, तो बर्न्ट इन ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, मतलब हेल्प्स इन फायर और बर्निंग प्रोसेस, तो उसी को कंबशन कहते हैं, ठीक है. तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है व्हेन इट इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज क्लियर ना, Mg plus O is equal to MgO. The description of this chemical reaction in a sentence is quite long. Obviously ऐसे लिखने में थोड़ा लगेगा ना कि भाई मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्ड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. नहीं भाई, इतना बहुत ज़्यादा लंबा है ये. अब छोटा फॉर्म बताओ भाई. तो वी कैन राइट दिस इन अ वर्ड इक्वेशन. अब एक वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड इक्वेशन होता है तुम्हारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब तुम वर्ड्स में लिख रहे हो ये सारी चीज़ें. तो मैग्नीशियम का पूरा स्पेलिंग लिखा, ऑक्सीजन का लिखा, फिर एक एरो देके मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया. अब पूछोगे तो ये एरो क्या बताता है? तो एरो जो होता है ना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एरो का क्या सिंबल होता है? एरो का मतलब होता है, ये एरो जो होता है ना तुम्हारा, ये एरो तुम्हारा डायरेक्शन बताता है. अगर तुम्हारा जो ये एरो होता है, अगर ये इस तरफ से होता ना, तो बोलता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, ये दो चीज़ें ये जो चीज़ें बना रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बता रहा है. बट अगर ये एरो जो है इस साइड है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड दिस इज अ, okay, I won't tell this is a combustion reaction. Actually I will tell you what is a combustion reaction later. इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस इतना बता दिया. और ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स मतलब जो तुम्हारे LHS साइड में होते हैं, और जो RHS साइड में होता है वो तुम्हारा होता है प्रोडक्ट. मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हुआ, लिख देती हूँ, ये तुम्हारा जो RHS है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज योर प्रोडक्ट. ओके. एंड जो तुम्हारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, प्लस क्यों डाला है? बिकॉज वी आर शोइंग दैट ओवर हियर कि ये दोनों चीज़ें जो है रिएक्ट फॉर्म कर रही हैं, तो रिएक्टेंट्स इसको कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट्स. मतलब ऑब्वियसली ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. और इसको RHS साइड वाले चीज़ को क्या कहते हैं? इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं. ये जो होता है LHS साइड में होता है, और जो एरो होता है वो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है. तो यही सब लिखा हुआ है इसमें. अब एक बार मैं रीड कर दूंगी तो समझ में आ ही जाएगा एक बार, है ना. देखो क्या है, मैं इधर लिख लेना, डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है. देखो क्या है. The substances that undergo a chemical change in chemical reaction of magnesium and oxygen and are the reactants. तो जो chemical change, they are going under a reaction, or which go under a chemical change. Again I told you, right, left hand side में ये सारे जो है reaction कर रहे हैं, तो that is your magnesium and oxygen, so they are known as reactants. The new product that is formed is magnesium oxide. जो चीज़ें बन रही हैं वो तुम्हारा product कहलाता है magnesium oxide, formed during the reaction as a product. A word equation shows the reactants of two products through the arrow between them. तो ये जो arrow है ना, this is showing that जो from the reactants to product ये कैसे form हो रहा है, किस direction में form हो रहा है, कैसे form हो रहा है ना. So the reactants are similarly written in the LHS, that is the left hand side, and they are added with a plus sign between them to show how what all चीजें are used in this reaction. And similarly products are written in the RHS side with also a plus sign. अगर मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व होती, मान लो हीट होता, तो ना तुम इसको ऐसे लिख सकते हो. ऐसे गलत है, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मत बोलना, बट ठीक है, बट तुम ऐसे लिख सकते हो, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, दैट वी कैन राइट इट विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. सिमिलरली द प्रोडक्ट्स कैन बी रिटन इन द RHS साइड, right hand side, with a plus sign between them, and the arrowhead which shows the direction of the products or the reaction, the direction of the reaction, how it's taking place. अब जैसे ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये एरो इस तरफ होता तो ये प्रोडक्ट से, ये जो इससे होता, ये सारे प्रोडक्ट होता है तुम्हारे. इसके समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. अब ये दो पेज में मैंने 30 मिनट लगाए हैं, बिकॉज इसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा बेस था इसमें, ठीक है. अब देखोगे, अब तुम्हारा
रियल कहानी शुरू होता है, बैलेंसिंग बैलेंसिंग जो भी होता है, ठीक है, वो भी रियल कहानी ही था, बट समझ सकते हो ना. ओके, 2 minutes break, आफ्टर दैट आई विल बी
ओके दोस्तों, तुम्हारा 5 मिनट का ब्रेक होता है अब खत्म। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, अभी 30 मिनट और बाकी है। प्लीज डू अटेंड इट। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को बोरिंग लगा होगा, तुम लोगों को ब्रेक भी मिल गया। तो अब वापस आ जाओ सब लोग तुम लोग। ठीक है, अगर तुम लोगों को ब्रेक नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट। ठीक है, बट इफ यू आर वॉचिंग इट इन द प्रीमियर और आई थिंक लाइव जो भी होगा, तो यू कैन डू दिस। ओके, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसका। और आज हम ट्राई करेंगे कि ये ख़त्म कर दें और थोड़ा सा ये स्टार्ट कर दें। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इजी होता है वुड से। ठीक है, और डिकम्पोजिशन भी बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट भी इजी है। ठीक है, इसमें तुम्हें एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, वो मैं तुम्हें लिख के बता दूंगी क्या याद करना पड़ेगा। खैर वो अभी बात छोड़ो, देखो क्या है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, is there any way of writing is there any shorter way of writing or representing a chemical equation? Chemical equations can be made more concise and useful uh, in we if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction, and if you recall a formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the word equation would be written as. काइंडली अंडरलाइन दिस असर्शन, रीजन में काम आता है ये सारी चीजें। तो अगर अब कोई छोटा वे है क्या, इतना लंबा वर्ड इक्वेशन लिखने से बेटर कोई छोटा वे, मतलब बताओ यार, कुछ तो होगा। अगर तुम्हें याद है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता था, Mg होता था जी। ऑक्सीजन क्या क्या होता था, O होता था जी, है ना। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अभी जस्ट बताया था 2 मिनट पहले करके, तो होता था मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यही लिखेंगे कि ना, इज देयर एनी शॉर्टर वे, तो ये लिखेंगे Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, so count and compare the number of atoms of each element of the RHS and the LHS side of the arrow. अच्छा, तो ये रिएक्टेंट साइज जो है इनके सारे एलिमेंट्स काउंट करेंगे और एनजीओ के भी काउंट करेंगे। चलो एक बार काउंट कर ही लेते जी। मैग्नीशियम देखो, आरएचएस की बात कर रही हूँ मैं, इधर इधर 1 है, ऑक्सीजन तो 2 है ना, और मैग्नीशियम इधर 1 है और ऑक्सीजन जो है 1 है इधर। ठीक है, देख लिया, काउंट कर लिया। oh is the number of atoms of the same element in each of the sides on both of the sides equal? Is it? No, it is not. If yes, the equation is balanced. अब तुम ही देखो, मैग्नीशियम थोड़ा अनबैलेंस लग रहा है, नहीं ऑक्सीजन थोड़ा वो अनबैलेंस लग रहा है। इधर आरएचएस एलएचएस साइड में 2 थे, इधर एक ही आटम है ना। तो ये तो अनबैलेंस था, बट इफ द इक्वेशन इज बैलेंस, देखो तुम इक्वेशन काउंट करके देखो, अनबैलेंस्ड है ना, यू वुड सी दैट इज नॉट बैलेंस्ड। सो इफ देन द इक्वेशन इज if the equation is not, then it is known as a unbalanced equation, because of the mass is not the same on both of the sides of the equation, and such a chemical equation is called as a skeletal equation or a skeletal equation, chemical reaction or a skeletal reaction, and skeletal reaction equation for burning of magnesium in air. अब तुमने क्या पढ़ा मुझे नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या बोला सुनो। देखो क्या है, आरएचएस साइड में क्या था, मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 था। अब एलएचएस साइड में क्या था, मैग्नीशियम 1 था और ऑक्सीजन थोड़ा 2 था। अब इसमें बोला कि कंपेयर करो, इज देयर एनी डिफरेंस। अब देखो, हाँ भाई, ऑक्सीजन इधर एलएचएस में 2 है, आरएचएस में तो 1 ही है। अब क्या करेंगे भाई, अब तो देखो तुम लोग, अगर अगर हम क्या करेंगे, देखो अब जब ये जो है ना, अगर ये दोनों जब सेम नहीं रहते ना, अगर एलएचएस साइड में भी सेम नहीं है, आरएचएस में भी सेम नहीं है, तब ये क्या होता है, ये जो केमिकल इक्वेशन जो होता है ये अनबैलेंस्ड हो जाता है। बट अगर मान लो अगर ये भी 2 होता, मान लो ये भी 2 होता है ना, तब ये क्या होता है कि ये भी बैलेंस फिर हो जाता। तो यही कह रहे हैं कि द सेम नंबर ऑफ एटम्स इज सपोज टू बी देयर एंड मास जो है, मास इज नॉट द सेम। मैग्नीशियम का भी मास सेम होना चाहिए, ऑक्सीजन का भी सेम होना चाहिए। अगर तुम्हें याद होगा, एक पढ़ा था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट एक
साइंटिस्ट के द्वारा, भूल गए, डाल्टन एटॉमिक, नहीं वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे कुछ तो था। तो देखो क्या था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसमें पढ़ा था ना कि रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड ऑफ द मास। रिएक्टेंट साइड का जो भी मास रहेगा, वट एवर द टोटल विल बी फॉर्म्ड, विल बी इक्वल टू mgO। बट इधर तो इक्वल नहीं है भाई, है ना, तो उसको इक्वल करना पड़ता है। तो इसलिए वी लर्न अबाउट बैलेंसिंग इक्वेशंस, ठीक है। अब हम करेंगे पढ़ाई इस पे। चलो अब देखो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है कि रिकॉल द कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगेन प्लीज डू अंडरलाइन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। This will be asked कि in your board exam कि why do we balance chemical equations. So you will write this because the masses should be same in both of the sides, and due to the law of conservation of mass, that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is the total mass of the elements present inside the product, present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant side. सेम चीज मान लो, अगर मैंने इधर बोला रिएक्टेंट्स जो है, टोटल मास जो है इसका, मास इज 2 kgs, I mean 2 grams मान लो, ठीक है। जो mgO फॉर्म्ड रहेगा इधर प्रोडक्ट साइड में भी, ये भी 2 grams ही होगा और ये इक्वल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल इन बोथ ऑफ द sides, ठीक है। So the other words, the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction, मतलब there won't be any change. So the number of atoms जो होते हैं ना, there won't be any difference, that in each element it will remain the same before and after a chemical reaction. Hence we need to balance a skeletal equation in the chemical. If it's is the chemical equation is balanced, let us learn about balancing a chemical equation. And in a word equation it may be represented as zinc plus sulfuric acid is known as H2SO4. It leads to H2SO zinc zinc sulfate, that is ZnSO4 plus H2। हो गया जी, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्ड इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसमें जो है ना, अब एक बार इसको बैलेंस एक बार करने की ट्राई करते हैं। देखो क्या है, क्या करना है, मान लो इस इक्वेशन को ले लेते हैं अच्छे से, थोड़ा मैं तुम्हें दिखा देती हूँ सारी जो खिचड़न पिचड़न कर रखी है। अब ये तुम्हारा वर्ड इक्वेशन क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, लीड्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक SO4 प्लस H2। इतना समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हो गया। अब क्या करना है, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द साइड्स। अब हम एक एलिमेंट्स के पहले तो नाम लिखेंगे, तो पहले एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, हम पहले जिंक लिखेंगे, पहला तो हमें दिख रहा है जिंक है एक, तो फिर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया भाई। फिर एक दिख रहा है सल्फर है, तो सल्फर भी लिख दिया, है ना। और फिर है एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी लिख दिया है। तो ये 4 एलिमेंट्स से, चारों के एलिमेंट्स के नाम लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिखना है कि नंबर ऑफ एटम्स, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम इन द बोथ साइड्स नालो इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस अनदर इक्वेशन। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, तुम ना प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, जिंक का देखोगे तो एक एटम है LHS में, H2SO4 में हाइड्रोजन का देखोगे तो 2 है, एंड देन सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन जो है ये तुम्हारा 4 है ना, तो 4 लिख दिया। RHS में देखो क्या है, जिंक तुम्हारा 1 है, फिर तुम्हारा सल्फर जो है 2 है, ऑक्सीजन जो है तुम्हारे 4 है, और हाइड्रोजन जो है तुम्हारे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और ये क्या सल्फर है, सल्फर तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो ये सारी कंपेयर करो, 1 1 2 2 1 1 4 4, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। कोई भी कहीं पे भी डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो हेंसफोर्थ दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। इसको पैदाइशी बैलेंस है, वी नीड नॉट बैलेंस इट। अब FeH2 लीड्स टू Fe3O4 प्लस H2 को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलो जी बैलेंस कर ही लेते हैं। एक बार ना मैं तुम्हें एक बार खुद से बैलेंस करके दिखा देती हूँ, मतलब एक बार रफ आइडिया देके फिर मैं एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। अब मान लो इसी टेबल में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे मन नहीं है,
कि बार मैं टेबल बनाऊं, या फिर चलो बना ही देते हैं, लो तुम्हारे खातिर बना देते भाई, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आयरन का ले लो Fe, हाइड्रोजन, फिर ले लो ऑक्सीजन, है ना। आयरन कितना, एक आयरन है तुम्हारा, हाइड्रोजन है तुम्हारे 2, ऑक्सीजन है तुम्हारा 3। अब RHS की बात करें तो हाइड्रोजन है तुम्हारे 3, ऑक्सीजन है तुम्हारे 4 और हाइड्रोजन है तुम्हारे 2। ठीक है जी। अब डिफरेंस क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन पैदाइशी बैलेंस है, वी नॉट छेड़छाड़ ना करें इससे, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन 4 चाहिए हमें, है ना, ऑक्सीजन 4 चाहिए। अच्छा जी, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन तो है ही बैलेंस्ड, हाइड्रोजन को हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे भाई लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम इधर 3Fe कर देंगे, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम इसको 3Fe कर देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस, Fe इज इक्वल टू Fe, तो हो जाएगा, है ना। अब ये ऑक्सीजन बाकी है, ऑक्सीजन अगर 4 है इधर, है ना जी, ऑक्सीजन तो तुम्हारे इधर 4 है। अब क्या करें भाई, अगर हम इधर 4 इधर भी डाल दें, इधर 4 इधर भी डाल दें, तो इधर क्या होगा कि इधर तो ऑक्सीजन 4 हो गया, बट हाइड्रोजन जो है तुम्हारे हो जाएंगे इधर 8। तो अगर इधर 8 हो गए, वाई टू फियर, है ना, इधर भी तुम 4 ही डाल दो, हो गया बैलेंस, हो गया ना बैलेंस। क्या है बैलेंस इक्वेशन, देखो 3Fe, 3Fe प्लस 4H2O, 4H2O। देखो मैंने क्या किया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इधर क्या किया मैंने, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, बट इधर तो वो हो गया, सत्यानाश हो गया तुम्हारा इधर, है ना। एक सेकेंड, हाइड्रोजन है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया तुम्हारा बैलेंस, प्लस Fe3O4 प्लस जो है तुम्हारा 4H2 है, हो गया बैलेंस। समझ में आ गया ना, मतलब जो भी एटम्स है तुम देखो कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को, सब है ना सारी चीजें, ये सारी चीजें रहने दो, छोड़ो भाई। अब लिखना है तो लिख लो, आई थिंक, आई होप तुम मेरे साथ लिखते जा रहे होगे जब मैं लिख रही होंगी तो, ठीक है। अब देखो क्या है स्टेप 1, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई थिंक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा बैलेंस कैसे करना है, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मैं वापस सिखा देती हूँ। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस ईच, नहीं अब आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, तो आई जस्ट रीड इट आउट। फर्स्ट, टू बैलेंस द इक्वेशन, first draw boxes around each of the formula, do not change anything inside the boxes while balancing the equation। देखो अब क्या करोगे तुम, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होगा कि तुम Fe, H2O, Fe3O4 और H2 को सारे में बॉक्सेस में कर दो। अब बॉक्सेस में क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज कोई हम इसको ऊट पटांग चीजें नहीं कर रहे, हम इसका वो जो है प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चेंज कर रहे, ठीक है, हम ना इसको कुछ कर रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए बॉक्सेस ड्रॉ किया है, बिकॉज जो भी इनसाइड है दैट विल रिमेन द सेम। Okay, to balance a chemical equation, first draw boxes around each of the chemical formula. Do not change anything inside the chemical equation while balancing. समझ में आ गया? List the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation. अब तुम RHS साइड का भी लिखोगे, LHS साइड का भी लिखोगे, तो Fe 1 था, 2 हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 था, है ना, और Fe3 था, 2 था, 4 था। अब देखो ये सारा कर लिया, अब स्टेप 3 क्या करना है, it is often convenient to start balancing in the chemical with the compounds that have the maximum number of atoms। अब इट इज इजी, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से स्टार्ट करें, जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन में इधर 4 डाल देंगे, है ना। So it may be either the reactant side or the product side. It is easier. ऐसे तुम कर सकते हो. In the compound, select the element which has the maximum number of atoms, that is oxygen.
ठीक है, यूजिंग these criterias we select Fe3O4 and the element which has oxygen in it. So there are 4 oxygen atoms in the RHS and only 1 atoms in the LHS side. तुम देख पा रहे हो कि in the RHS side there are 4 atoms of this and 1 atom of hydrogen. ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे. टू बैलेंस इट, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वी मस्ट रिमेंबर दैट we cannot and after the formula of the compounds or elements involved in the reactions. For example, to balance any oxygen atoms, we put it in a coefficient 4H2O. But H2SO, we don't, or not H2O4, we don't say like that, right? We put it as H2 for bracket 4. So we partly are balancing it, so this partly becomes balanced, है ना. तो as you can see that usually ना कभी कभी पूछ देते हैं ये 6 स्टेप्स पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो तुम थोड़ा कंसाइज करके इसको लिख सकते हो 6 स्टेप्स को. ठीक है, पहला स्टेप क्या था? टू पुट देम इन बॉक्सेस. सेकंड वाला स्टेप था कि लिस्ट ऑल ऑफ द एटम्स ऑफ LHS RHS. फिर बैलेंस करेंगे तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को, दैट इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर गेटिंग 4 and 4 and 4. So to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot after the formula of the compounds or elements involved in the reactions. For example, to balance oxygen. अब क्या बोल रहा है कि बॉक्सेस में क्यों डाला गया है? देखो हम लोग वी आर जस्ट पुटिंग, इट इज नॉट अ कोएफिशिएंट, राइट? वी आर पुटिंग दिस एज अ कोएफिशिएंट, मतलब ऐसे डाल रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ एटम्स हियर, राइट? You're not saying it as H2SO4. It is not doing like that, right? H2 for O4 ऐसे नहीं लिख रहे ना. To partially balance it, actually में हमें कोएफिशिएंट की तरह 4 को डालना पड़ेगा. डल गया ना. Fe and H are still not balanced, है ना. देखो 3 balanced नहीं है, तो pick any of the elements that proceed further. Let us choose hydrogen. Hydrogen is easy balance, so it is partially balanced. To equalize the number of hydrogen molecules, we in the have to add 4 in the RHS side. अब देखो इन दिस साइड इनिशियली क्या था? 4H2O हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो थे 8 हो गए. तो क्या करेंगे इन द प्रोडक्ट साइड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, प्रोडक्ट साइड बोला था ना इधर, प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 हो जाएंगे ना, 8 हो जाएंगे इधर भी. तो दिस वुड बी Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 to 4H2, है ना. अब देखो अब फिफ्थ स्टेप क्या है? एग्जामिन द अबव सिचुएशन एंड पिक अप थर्ड एलिमेंट दैट इज नॉट बैलेंस्ड. अब थर्ड एलिमेंट देखो क्या है, विच इज आयरन. आयरन तुम्हारा नहीं है, तो देखो इन रिएक्टेंट साइड इट इज नॉट बैलेंस ना, 3 चाहिए तो 1 into 3 कर दोगे, 3Fe प्लस H2O, 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2 कर दोगे, तो दिस विल बी योर फाइनल वर्ड इक्वेशन. फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बोथ द साइड्स, वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. 3 है, इधर भी 3 है, H2 8 है, इधर भी 8 है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन. सही है भाई. तो अब इसको सब चीज़ों से हटा देंगे, ठीक है.
अब देखो, द नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स ऑन बोथ ऑफ द साइड्स आर नाउ इक्वल। देखा, अभी जस्ट चेक किया हम लोगों ने। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन नाउ इज जस्ट बैलेंस। अभी जस्ट इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। So the method of balancing chemical equation is also called as a trial and error method. Very important. Hit and trial method. तो देखो, balancing equations क्या कर रहे हो, अभी तुम बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हो ना, तो obviously this is known as hit and trial method. तो जो balancing chemical equations में what you are using, you are also using the hit and trial method, as we are making trials to balance this equation with the smallest whole number coefficients. अब writing symbols of physical states. ठीक है, विल डू टिल हियर ओनली आई थिंक टुडे, बट ये खत्म कर देते हैं, 5 पेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसके। देखो क्या है, राइटिंग सिंबल्स फॉर फिजिकल स्टेट्स क्या होता है। नाउ केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन। तुमने ऊपर वाला बैलेंस इक्वेशन तो देख लिया, अब इसके स्टेट्स भी लिखने रहते हैं। दिस इज इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, मतलब क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है ये। एक्वस क्या होता है वैसे, व्हेन इट इज बेसिकली लाइक अ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन व्हेन अ सॉलिड इज मिक्स्ड इनटू समथिंग, solute is mixed into solvent, ठीक है। So no information has been given, right? So obviously we have to write their physical states in order to give us an idea about भाई इसका physical state क्या है। To make this more informative, to make this chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products should be mentioned along with the chemical reactions and the formula। मतलब तुमने फॉर्मूला लिख लिया, केमिकल रिएक्शन लिख लिया, बट उसका स्टेट भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो द गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और द एक्वस स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट्स आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो तुम इसके नोटेशंस होते हैं। अब जैसे गैस के लिए तुम जी रिप्रेजेंट करोगे, सॉलिड के लिए तुम एस करोगे, लिक्विड के लिए तुम एल करोगे। फिर एक्वस, एक्वस क्या होता है, एक्वस क्या होता है जी, अभी जस्ट बताया, इट इज बेसिकली अ सॉलिटल सॉल्यूशन वेयर समथिंग हैज बीन, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर और अ प्रोडक्ट और वाटर, ठीक है। तो देखो क्या है, it is basically the aqueous state, है ना, and this is represented by the notations gl, aq and s respectively, and the word aqueous, aq is written if the reactant or the product is present in the solution of water, water में dissolved है अगर वो solution, then it is known as aqueous, ठीक है। I hope this is clear. So 3Fe is solid, 4H2 तो ऑब्वियसली गैस है इसमें। अब तुम सोच रहे होगे कि H2 तो भाई वाटर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इधर गैस क्यों दिया हुआ है। तो कुछ स्टेट्स में इधर कभी कभी गैस दे दिया जाता है, तो प्लीज डू राइट दिस इन दिस वे ओनली। Fe3O4 जो है, Fe3O4 ये तुम्हारा सॉलिड है, 4H2O जो है तुम्हारा गैस है, तो ये तुम्हारे स्टेट्स भी मेंशन कर दिए। तो whenever you are writing an equation in board exam, chemical equation, make sure it's balanced, its physical state is written, proper formulas है, सारे डायरेक्शंस वगैरह सब चेक कर लेना, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके बट चेक कर लेना, सब बैलेंस करने वाला, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं एक इजियर वे बता दूंगी, मतलब देख के ही तुम बता सकते हो, ठीक है। So note that the symbol G is used with H2O to indicate that it is because of the reaction of water is used to form of steam। अब देखो मैंने वही बोला ना कि सिंबल ऑफ गैस क्यों यूज हुआ है H2O में, टू इंडिकेट बिकॉज रिएक्शन ऑफ वाटर, इधर वाटर जो हुआ है इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जो वाटर है नाउ इट इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंट ऑफ स्टीम। तो ये ऐसे पूछ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। Usually, physical states are not included in chemical equations unless necessary to specify them. Usually जो होते हैं chemical equations में तुम्हारे solid states, physical states नहीं होते, but you do have to mention all of the physical states, okay, always. And usually physical states are not included in a chemical reaction unless it is necessary or specify them, ठीक है। So sometimes the reaction of these conditions are as such as in temperature, pressure or catalyst, or for the reaction catalyst क्या होता है, it is basically the rate of doing
and rate of performing and reaction, मतलब कितनी जल्दी एक रिएक्शन हो रहा है. तो द रेट, लिख लो कैटलिस्ट का मीनिंग एरो देखे, द रेट ऑफ डूइंग अ रिएक्शन, हाउ फास्ट अ रिएक्शन इज. ठीक है, तो समझ में आ गया इतना. फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारे ना कभी कभी ऊपर दिए होता है कि कभी प्रेशर के लिए दिया होता है, कभी सनलाइट दिया होता है, कभी टेम्परेचर के लिए दिया होता है, हीट दिया होता है, ट्रायंगल कुछ दिया होता है. ऐसी चीजें इंडिकेटेड होती है. क्यों होती है? क्योंकि ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में. अब जैसे तुम देख सकते हो, CO गैस प्लस H2 is leading to CH3OH. ठीक है, अब देखो इधर क्या है तुम्हारा 6CHCO2, एक एक्वस, इधर तुम्हारे सारे स्टेट्स ये हैं, प्लस 2LH2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H. अब ये जो CH एक यू है ना, ये सारे तुम्हारे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है तुम्हारा, प्लस 6O2 एक्वस प्लस 6H2O. ठीक है, समझ में आया ना. CO2 तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जी, याद रखना ये. ठीक है, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. अब तुम इसको एक बार बैलेंस कर सकते हो. देखो क्या है, एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन एक है, इधर इधर भी ऑक्सीजन एक है, इधर जो है 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, इधर सिर्फ एक हाइड्रोजन है ना. देखो क्या है, CO, C है एक, ऑक्सीजन भी है तुम्हारा एक, हाइड्रोजन इधर तुम्हारे 4 है, इधर 2 डाल दिया तो भी ये बैलेंस हो गया. ठीक है, अब देखो CO2, कार्बन एक है, कार्बन 6 इधर, तो इधर 6 डाल देंगे, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है इधर, है ना. तो अगर मान लो तुम इधर 6 डाल दोगे, प्लस इधर एक ऑक्सीजन है ना, तो इधर 7 है, 6 प्लस 2 10, इधर हो जाएगा कितना, इधर तुम्हारे 9 तुम्हारे हैं, इधर ऑक्सीजन है ना, तो तुम्हारे 9 ऑक्सीजन है, तो तुम इधर 6 डाल रहे हो, तो फिर 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है, 12 प्लस, हाँ. तो ऐसे ऐसे करके तुम बैलेंस कर सकते हो, एक बार ट्राई करना ज़रूर. ओके, इफ़ यू वांट दूसरे क्लास में मैं ट्राई करवा दूंगी. तुम एक बार ऐसे काउंट करके चेक कर सकते हो क्या है, whether it is balanced or not, but इधर बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, but if you want you can try it out yourself. ठीक है, that is all for today. कल we'll do this equations and stuff. ठीक है, so I hope you understood अभी तक जितना पढ़ाया. कितना पढ़ाया, इतना 4 पेजेस पढ़ाया ना डिटेल में, तो लर्न दैट प्रॉपरली एंड रिविजन कर लेना. Till then take care and bye bye. Love you all. Bye Twilights.